Good morning, students. Now, today I will explain microbes in industrial products. Students, microbes are also used in producing large number of industrial product. Student, in previous lecture I have explained that microbes are used in making household product like bread, like curd, like paneer, like this. Now in this lecture I will explain how microbes are used to make industrial products. Student, microbes are used to produce alcoholic beverages and antibiotic in industry. Student, microbes का यूज़ इंडस्ट्रीज में अल्कोहलिक बेवरेजेस और एंटीबायोटिक और कुछ और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इनका यूज़ होता है. Now firstly we discuss here about how to make the fermented beverages. कैसे बेवरेजेस अल्कोहलिक बनाए जाते हैं और कौन सा माइक्रोब इसमें यूज़ होता है. तो स्टूडेंट, ईस्ट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल. जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें इथेनॉल का यूज़ किया जाता है. और इस इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में ईस्ट माइक्रोब का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. स्टूडेंट, ईस्ट इज एनारोब विच प्रोड्यूस द इथेनॉल with the help of the alcoholic fermentation. What is the scientific name of yeast, student? So very simple answer, Saccharomyces cerevisiae is the scientific name of yeast. Question here, how yeast prepare the alcohol? Student, yeast use the glucose as a food and convert it into ethanol and carbon dioxide, and 2 ATP are also formed. This process is called alcoholic fermentation. In this process Zymease enzyme is used. So student, when oxygen is insufficient for yeast, then it start to anaerobic respiration, and due to anaerobic respiration it form the ethanol and carbon dioxide. So student, this ethanol is excreted by the yeast as a waste product, and CO2 gas also released. And this ethanol is collected by industrialists, and this ethanol is used for making different type of alcoholic beverages. Now we discuss here different type of alcoholic beverages like beer, wine, whiskey, rum, brandy. Student, beer contain 3 to 6% alcohol, wine contain 9 to 12% alcohol, whiskey contain 20 to 30% alcohol, rum contain 40% alcohol, and brandy contain 60 to 70% alcohol. These are the alcoholic beverages, and this is the percentage of the alcohol which contained by these beverages. Now student, yeast ferment malted. Now we discuss here how yeast prepare the alcohol and
Then this alcohol is used to prepare the different type of alcoholic beverages. फर्स्टली होता है क्या है स्टूडेंट, जो सीरियल्स या फ्रूट्स या शुगर मोलासेस इनका यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने में। और जैसे सपोज़ कीजिए किसी सीरियल या फ्रूट से अगर अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले सीरियल्स और फ्रूट्स को वाटर में इन्हें सोक किया जाएगा और देन ईस्ट इज़ एडेड। दिस ईस्ट इज़ used to make the alcohol from the fermented cereals and fruit juice. Student, the alcohol is formed by the yeast. This is called the ethanol. The formula of ethanol is C2H5OH. This ethanol is formed in the big container. दिस इज़ कॉल्ड द फर्मेंटर्स। इस अल्कोहल को स्टूडेंट एक बड़े से कंटेनर में प्रिपेयर किया जाता है। दिस कंटेनर इज़ कॉल्ड फर्मेंटर एंड द इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन प्लांट। और जिस इंडस्ट्री में से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है सीरियल्स, फ्रूट्स या शुगर मोलासिस का बाई ईस्ट, तो दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन प्लांट। Here plant means not a living thing, this is a industry. So student, fermentation plant means you have understood. Now next I will explain here beer making, कि beer कैसे बनाई जाती है। Student, this process only you keep in your mind, never try to make at home. But if you become an engineer, a chemical engineer, then you can prepare this beer in industry, not apply at home. So firstly I tell the processing of beer making. Student, firstly we take barley grains. सबसे पहले हम barley grains को लेते हैं और फिर उन्हें एक बड़े से कंटेनर में वाटर में भिगो देते हैं फॉर 2 days। 2 दिन के लिए बार्ले के जो ग्रेन्स हैं उन्हें पानी में हम भिगो देंगे। इट मीन्स दैट सोक द बार्ले ग्रेन्स इन वाटर फॉर 2 days at 15 to 20 degrees Celsius एंड देन अलाउ टू जर्मिनेट फॉर 4 days। और फिर उन्हें जर्मिनेट होने के लिए 4 दिन के लिए रख देंगे। 4 days में वो सभी बाले ग्रेन्स जब जर्मिनेट हो जाएं तभी उनको ड्राई करना है, सुखाना है। दिस प्रोसेस कॉल्ड माल्टिंग। इसी प्रोसेस को माल्टिंग कहा जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट ड्राइड ग्रेन आर मिल्ड या क्रश्ड इन वाटर एट 65 डिग्री सेल्सियस। और फिर वो ड्राइड ग्रेन होंगे, जर्मिनेटेड ग्रेन, उन्हें 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वाटर में इसे अच्छी तरीके से क्रश करना है एंड अलाउड टू स्टैंड बार्ले एंजाइम डाइजेस्ट द स्टूडेंट स्टार्च टू माल्टोज एंड ग्लूकोज। और फिर इसी में ईस्ट को अलाउ करना है जिससे कि वो अपने एंजाइम से क्या करेगा, स्टार्च को पहले माल्टोज में ब्रेक करेगा और फिर माल्टोज को ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर लेगा। आफ्टर दैट द शुगरी सोल्यूशन, व्हेन द ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, देन अ शुगरी सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड द वार्ट। इसी को वार्ट कहा जाता है स्टूडेंट। और फिर इसे फिल्टर्ड करेंगे और बॉइल्ड करेंगे। देन आफ्टर ईस्ट इज एडेड टू वार्ट, फिर इसमें ईस्ट को ऐड करना है अगेन। और फिर स्टूडेंट्स, एंजाइम प्रेजेंट इन ईस्ट कन्वर्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तभी ये बचा हुआ माल्टोज होगा उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और फिर इसको फर्मेंटेशन
स्टूडेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस से ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड CO2 गैस, और फिर इसको वो ईस्ट जो है ग्लूकोज को अल्कोहल और CO2 में ब्रेक डाउन कर देगा। एंड 2 ATP आल्सो फॉर्म्ड, दिस ATP इज यूज्ड बाय द ईस्ट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज डन फॉर 5 to 14 डेज, और ये फर्मेंटेशन में लगभग 5 से 14 डेज लग जाते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट फर्मेंटेशन के बाद जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनेगा, उस अल्कोहलिक सॉल्यूशन को 3 to 5% तक जो होगा उसी को बोटल्स में स्टोर कर लिया जाएगा, बोतल या कैंस में, और CO2 लेवल को एडजस्ट किया जाएगा और फिर बियर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट, इन दिस वे you can learn the processing of the beer making. Thank you for watching this lecture. In next lecture I will explain the second product, industrial product. I will explain this is antibiotic.